गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सौदा आपका और आज नरेंद्र मोदी की सरकार पहला पूर्ण रेल बजट लोकसभा में पेश करेगी। रेल बजट से देश को बड़ी उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि प्रभु की रेल कितनी रफ्तार से दौड़ती है। अब सभी को इंतजार है रेल मंत्री के पिटारे के खुलने का और हम भी इससे जुड़े लाइव अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं अभी की हेडलाइंस पर। आज लोकसभा में पेश होगा रेल बजट। रेल मंत्री ने कहा मुश्किल हालातों के बावजूद जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की होगी पूरी कोशिश। रेल बजट में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर हो सकता है जोर। एफडीआई और पीपीपी के जरिए निवेश को बढ़ाने की कोशिश। आज आवाज पर दिन भर देखिए रेल बजट का मेगा कवरेज। Type of expectations people have from the railways, it only means that we need to change and find out the new avenues. Find out new avenues. So it's like 3 S's and 1 I. That's investment. So other important things is of course the fare hike. I know you are privileged. You obviously you cannot tell that answer to this question. But there was a fall in the crude oil prices. Will that figure out in the budget? It must have given you some kind of comfort in a sense. No, we'll definitely keep the long-term interest of the railways, the interest of the common man, and also we'll try to balance both of that in a way that everybody is properly taken care of. So it will be a kind of a tightrope walk for you? I think it's going to be a walk for sure. Whether the rope is tight or not, we'll see it very soon. Sir, also the focus is on the high-speed railways, the bullet train from Ahmedabad and Mumbai. What's the update like on that? We know there was a report also. Just wait for a few more minutes. And then I think my members of parliament should have that information before anybody else. So we'll let you know very soon. But sir, one thing which have been derailing the railways is populism. 10 years of populism has many experts now say it has caused quite a problem. The last railway minister Sadanand Gowda said that the era of populism is over now for the railways. Is this trend likely to continue? Because this government is not is kind of subsidy. It wants to give a targeted subsidy. We are definitely moving towards an era of making sure that railways become financially viable, sustainable, and I think that is what is important for us. Sir, you took charge on 10th November, if I'm right, and since then, a lot of things have happened. Two things which you would like to tell the public just before going to the Parliament, which you think are you really proud of. One I know is the connectivity with the Northeast. Quite a few things. In fact, I will tell you, last 3 months that I have been a minister, we have taken maybe about 400-500 new initiatives. So all of them are, in my opinion, each of them are very important because otherwise it wouldn't have been taken if it was not as important as I thought it was. Therefore, I think all of them are important, but they are building blocks. So each of the initiatives is a building block. I will not be happy, I will not be satisfied, I will not be contented till railways become better. So it are building blocks leading to a process which will make railway a sustainable, viable and a much better option, efficient one in the next few years. But sir, your focus was also तो आज पूरे देश की निगाह है इस रेल बजट पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जब पहुंचेंगे संसद और पेश करेंगे तो सब जानना चाहेंगे मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं रेलवेज, एफडीआई को लेकर इनका क्या रुख रहने वाला है, स्वच्छता को लेकर क्या एक नया सेस देना पड़ सकता है। तो आज दिन भर सीएनबीसी आवाज पर देखिए हमारी मेगा कवरेज रेल बजट की, जिससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। होंगे हमारे कुछ खास एक्सपर्ट्स भी। तो बाजार की क्या उम्मीदें हैं रेल बजट से, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, गुड मॉर्निंग। बाजार की उम्मीदों की पटरी पर रेल बजट कितना खरा उतरेगा ये तो हम आफ्टरनून ट्रेड से अंदाजा लगाएंगे, लेकिन फिलहाल किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह के ऐलान के सुनने का इंतजार है बाजार को? बहुत उम्मीदें हैं प्रियंका। खासतौर पर ध्यान रखें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन स्पीचेस से रेलवे की बात करना शुरू करी थी। तब उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी की, नेशनल इंटीग्रेशन की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ये बैकबोन होने वाला है और ये पहला पूर्ण बजट इस नई सरकार का आने वाला है। तो होप्स वैसे ही हाई हैं और होप्स हाई होती हुई ज्यादा नजर आई जब नवंबर में
सुरेश प्रभु साहब ने इस मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला तो अब सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स होप कर रहे हैं कि एक रेडिकल चेंज, एक सी चेंज यहां पे देखने को मिलेगा, और वो भी एक ऐसी मिनिस्ट्री में जो अब तक आप पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए ज्यादा जानते थे। तो उस लिहाज से कहा जा रहा है गेम चेंजिंग शायद हो सकता है रेलवे बजट। लेकिन क्या सुनना चाहेगा बाजार? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, सबसे पहले सुनना चाहेगा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान रेलवेज का क्या है, 5 साल तक प्रभु साहब होंगे यहां पे, किस तरह से प्लान्स अनवेल होंगे, क्या विजन होगा। तो एक विजन डॉक्यूमेंट पे बाजार की खास तौर पे नजर होने वाली है। उसके अलावा ध्यान रखें एक नियर बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट आने वाला है, तो प्रभु साहब की स्पीच को मार्केट पार्टिसिपेंट्स बड़ा कीनली गॉज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनिवार को जो यूनियन बजट आने वाला है फिर उसके टोन और उसके थ्रस्ट के क्यूज यहां से लोग उठाने की कोशिश करेंगे। एक टाइट रोप वॉक हमेशा की तरह होने वाली है, तो किस हद तक वो ट्रेडिशनल पॉपुलिज्म, किस हद तक नए एज रिफॉर्म जो हम कहते हैं वहां पे बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रभु साहब के लिए सबसे टफ चैलेंज है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं रेलवेज के, उसकी फंडिंग को लेकर। ध्यान रखें इस समय ऑलमोस्ट 360 पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीस की रेलवेज को जरूरत है। और जून लास्ट ईयर में आपको याद होगा यात्री भाड़ा, माल भाड़ा बढ़ाया गया था, और जिस तरह से डीजल की प्राइसेस नीचे आई हैं, हाईली अनलाइकली है कि दाम बढ़ाए जाएंगे, इन भाड़े फिर से बनाए जाएंगे। माइनर एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं तत्काल प्रीमियम स्पेशल ट्रेन के लिहाज से, लेकिन वो ऑब्वियसली इस पूरे प्रोजेक्ट्स की बिल्कुल भी भरपाई नहीं करने वाले। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एक बजटरी एलोकेशन जो बजट में आएगा रेलवेज का, उसमें एक तगड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। एफडीआई की बात करी गई थी, एफडीआई खोला गया था, लेकिन कोई विदेशी कंपनी अब तक बड़े इच्छुक नजर नहीं आई है। तो कैसे उनको भरोसा दिलाने की कोशिश करी जाएगी प्रभु साहब द्वारा, एसपीवीज पीपीपी मॉडल के जरिए कैसे पर्से जुटाए जाएंगे, उस पर खासतौर पर नजर रहने वाली है इस बजट में मार्केट पार्टिसिपेंट की खासतौर पर जिस तरह की फिजिकल हालात हैं, शायद हाईली अनलाइकली कि कंपनी स्पेसिफिक बहुत बड़ा आउटले आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी अनसर्टेनिटी रहती है कि इवेंचुअली किस कंपनी को फायदा होगा, तो कंपनीज के लिहाज से शायद इतना बड़ा पॉजिटिव ना हो जितना स्टॉक प्राइस का मूवमेंट था। लेकिन बाजार की नजर पूरी तरह से विजन और रिफॉर्म्स पे रहने वाली है। बिल्कुल, और अब साफ तौर पर अगर किसी गठबंधन सरकार हम नहीं देख रहे तो अलायंस का प्रश्न नहीं होगा, इसलिए प्रभु जी पर जिम्मेदारी भी बहुत रहने वाली है। आशीष, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कौन से वो शेयर हैं जिन पर आज असर दिख सकता है रेल बजट के अनाउंसमेंट्स का? स्टॉक स्पेसिफिक तो बड़ा एक्सपेक्टेशंस इस बजट से बनी हुई है, पर यह कहना मुश्किल है कि एक्चुअली प्रभु साहब किस तरह के प्लान्स, किस तरह की स्कीम्स अनवेल करते हैं। लेकिन जो कंपनीज रेलवे पे खासतौर पे फोकस करती हैं उन पे आप नजरें बना के रखें। याद होगा आपको प्रीवियस बजट में सरकार ने कहा था कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, कई सारे हाई स्पीड ट्रेन्स के अनाउंसमेंट, हाई स्पीड प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट्स की बात की गई थी। उसी में अगर कुछ फर्दर थ्रस्ट दिया जाएगा तो सीमेंस, एल्स्टम, बीएमएल जैसी कंपनीज जिनको आप रडार पे रखें। फाइनेंशियल क्रंच है तो हाईली अनलाइकली कि प्रभु साहब बहुत ज्यादा नई ट्रेन चलाते हुए नजर आए, लेकिन वेगन्स के केस में शायद तगड़ा एडिशन जरूर सुनने को मिले आपको। तो फिर टेक्समैको रेल, कालिंदी रेल, टीटागढ़ वैगन, सिमको, बीएमएल, पन्नार इंडस्ट्रीज, सेप्को, ये वो तमाम कंपनीज हैं जो इस स्पेस में एक्टिव है। स्टेनलेस स्टील वेगन्स की आपको याद होगा बीच में बात उठती हुई नजर आई थी। हालांकि ये तमाम कंपनीज उस तरफ आसानी से मूव कर सकती हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील वेगन्स इस समय स्पेसिफिकली पन्नार, टेक्समैको रेल और सेप्को जैसी कंपनीज उस पर काम करती हैं। ट्रैक लेइंग की बात करी जा सकती है, खासतौर पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करी जा सकती है, तो कालिंदी रेल, बीएमएल जैसी कंपनीज फोकस में आएंगी। ऑब्वियसली इस बजट में इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन पे फोकस होगा, तो इंटीग्रा इंजीनियरिंग, एल्स्टम इंडिया, सीमेंस इंडिया, केसी इंटरनेशनल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबीबी जैसे दिग्गज फोकस में होंगे। ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये ध्यान रखें इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ज्यादा जानी जाती है। हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये फैसिलिटी मैनेजमेंट, जैनिटोरियल सर्विसेज यानी कि साफ सफाई के काम में है। ध्यान रखें वो ग्रुप कंपनी में कारोबार जा चुका है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड होगा तो ए टू जेड को फायदा होगा। रिजर्वेशन सिस्टम्स को अपग्रेड करना, उसकी बात हो सकती है। एचसीएल इन्फो सिस्टम, सीएमसी जैसी कंपनीज पहले भी रेलवेज के लिए इस फ्रंट पे काम कर चुकी हैं। वखरंगी जैसी कंपनी भी इस लिस्ट में आप शुमार कर सकते हैं। सेफ्टी पे खासतौर पर फोकस होगा, तो एंटी कोलिजन डिवाइसेज जो कंपनीज बनाती हैं, चाहे वो एचबीएल पावर सिस्टम्स हो, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स हो, इनको रडार पे रखें। इसके अलावा सेफ्टी का एक अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, चाहे फिर जायकॉम हो, नितिन फायर हो, इन जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी की सरकार ने बात करी थी और एक्सपेक्टेशंस बड़ी माउंटेड हैं कि कई सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स आपको इस बजट में सुनने को मिल सकते हैं, और शायद उसमें सोलर पावर एक बिग वे में सामने आएगा। अगर ऐसा हुआ
तो मोजर बेयर जैसी कंपनी, सुजलॉन जैसी कंपनीज भी सोलर पावर में एक्टिव होने की बात कर चुकी है। पेन्नार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज जो कि न पैनल्स तो नहीं बनाती लेकिन मॉड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है सोलर पैनल्स के लिए। एल्स्टम, एबीबी जैसे दिग्गज स्पेस में ऑपरेटिव हैं, वो कंपनीज आपको रडार पर होनी चाहिए। रेलवे के वर्क ऑर्डर्स के चलते तमाम इंफ्रा कंपनीज रडार पे हो सकती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट रोड कॉरिडोर्स पे भी काफी वर्क प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो, एनसीसी, आईवीआरसीएल, एमबीएल इंफ्रा, गैमन इंफ्रा जो कि पीपीपी मॉडल पे खासतौर पे काम भी करती है, प्रतिभा, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो शायद फोकस में आएंगी। फ्रेट रेट हाइक की शायद बात हो, अगर ऐसा होता है तो टीसीआई और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स जो कि ज्यादा रोडवेज पे फोकस करती हैं, इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। पर कंटेनर कॉर्प, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क जैसी कंपनीज जो कि रेलवे पे ज्यादा थ्रस्ट रखती हैं, इनके लिए शायद थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव खबर हो सकती है। दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और हो सकते हैं शायद इस रेल बजट में। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करी जा सकती है, तो वाटक विभाग, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज अपने रडार पर रखें। और ब्रांडेड फूड्स की शायद ये सरकार बात कर सकती है, ट्रेन्स में अवेलेबिलिटी, स्टेशंस में अवेलेबिलिटी की बात। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने हाल में इस फ्रंट पे करार भी कराया आईआरसीटीसी के साथ। एग्रोटेक फूड्स, कोहिनूर फूड्स, ब्रिटानिया जैसी तमाम कंपनीज हैं जिनको शायद इस खबर का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो लिस्ट बेहद लंबी है, इट कैन गो ऑन एंड ऑन प्रियंका, लेकिन ये स्पेसिफिकली वो कंपनीज हैं जिनको शायद फायदा मिलता हुआ नजर आए इन अनाउंसमेंट्स के चलते। चलिए, शुक्रिया आशीष। मुझे पता है आप भी दिन भर इन स्टॉक्स पर तो नजर रखेंगे और बाजार का फोकस रहने वाला है रेल बजट पर। क्या रेल मंत्री ऐसा करते हैं कुछ जो बाजार के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, क्योंकि सुबह से ही बाजार भी हल्के से दबाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन सौदा आपका में अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और MintDirect.com के रिसर्च हेड अविनाश गोराशकर। तो वापस आइए सौदा आपका में। तो आज पेश होने वाला है रेल बजट। थोड़ी ही देर में रेल मंत्री पहुंचने वाले हैं संसद, जिस पर रहेगी हमारी नजर। सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे आज सीएनबीसी आवाज अपनी मेगा कवरेज पर। लेकिन फिलहाल मेरे साथ शामिल हो चुके हैं शेयरों पर सलाह देने के लिए दो खास मेहमान, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और MintDirect.com के रिसर्च हेड अविनाश गोराशकर। समित, गुड मॉर्निंग। आपसे पूछना चाहूंगी, आज एक्सपायरी का भी दिन है और रेल बजट की भी अनाउंसमेंट है। आप क्या देख रहे हैं? फरवरी सीरीज किस तरह से रैप अप हो रहा है, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है और अगले सीरीज के लिए क्या उम्मीदें हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट वीक से हमारा ये मानना है कि निफ्टी में फिलहाल एक रेंज है 8850 8650, ये रेंज में ही निफ्टी रहने के चांसेस है। हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से कोई भी एक स्मॉल अप मूव आता है 8800 8850, बट वहां पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और वापस हम लोग लोअर लेवल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर आज की स्पेसिफिकली हम बात करें तो 8726 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी पे। वो अगर होल्ड नहीं कर पाता, अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो प्रॉब्ली वीकनेस रहेगा आज के दिन में। और इस केस में हम लोग 8700 8680 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। और हायर साइड में इंट्राडे के लिए 8780 8800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो एज ऑफ नाउ 1-2 दिन का भी अगर व्यू पकड़े तो एक रेंज बाउंड एक्शन है और आज के लिए 8726 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। ऑलराइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवालों का। और प्रथमेश राठी पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रथमेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 100 टेक्सरेल है 146 के एवरेज के। ऑलराइट, और आज है रेल बजट, टैक्स रेल पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग। टैक्स रेल है इनके पास, स्टील वैगन बनाने के काम से जुड़ी हुई है टैक्स रेल, और ऑब्वियसली रेल बजट पर इसका भी ध्यान रहेगा। आपको कैसी दिखती है टैक्स रेल, और अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या राय बनती है इस पर? आई थिंक मुझे लग रहा है कि इनको टैक्स रेल का शेयर होल्ड करना चाहिए प्रियंका। मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट रिवाइवल जो रेलवे का मेन थीम है वो शायद इस बजट में हमको सुनने को मिले। और क्लियरली टैक्स रेल कालिंदी रेल को भी कंट्रोल करती है, तो मेरे ख्याल से जो भी ऑर्डर विन सिग्नलिंग और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है वहां पे भी डेफिनेटली कंपनी को इजाफा होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा लंबा समय दे, क्योंकि हालांकि हम देखते हैं कि बजट वाले दिन पे काफी वॉलेटिलिटी रेलवे स्टॉक्स में हम देखते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन और कूलिंग ऑफ होता है। लेकिन अगर ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स का व्यू लेके काम करे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि वही स्ट्रेटेजी अगर वो अडॉप्ट करे तो उनको अच्छा मुनाफा बन सकता है।
राइट, तो टैक्स रेल में बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश आपको। भले ही अभी आपके जो खरीद का भाव रहा है उससे थोड़े से कम में चल रहा है, लेकिन बने रहिए इसमें। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सलाह जारी रहेगी। हम बताएंगे क्या करना चाहिए आपको अपने शेयर से। तो आज है रेल बजट। बाजार का फोकस रेल बजट पर है और बाजार के अलावा कॉर्पोरेट, आम आदमी सभी जानना चाहते हैं कि आज जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे, ये पेपर्स हम देख रहे हैं रेल बजट के संसद की तरफ पहुंचते हुए, इन पेपर्स में क्या होगा, ऐसी कौन सी बातें होंगी जो रेलवेज को तरक्की की राह पर ले जाएंगी, इस पर रहेगी नजर। तो रेलवे है आज प्रभु भरोसे। हम अक्सर कहते हैं भगवान भरोसे, लेकिन आज है रेल मंत्री सुरेश प्रभु के भरोसे कि वो किस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं। लेकिन इसीलिए शायद आज हम देख रहे हैं रेल से जुड़े स्टॉक्स पर हमारे पास सवाल भी कई पहुंचे। अगला सवाल किशोर नवाले जी का मुंबई से है और ये समझना चाहते हैं टीटागढ़ वैगन्स के बारे में। इनके पास 50 शेयर है, इनकी खरीद का भाव 420 रुपए रहा है। समित टीटागढ़ वैगन, इसके चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? फिलहाल हमारे जो दर्शक है जिन्होंने ये सवाल भेजा है उन्हें 174 रुपए का मुनाफा भी हो रहा है टीटागढ़ वैगन में। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, ब्रॉडर व्यू से चार्ट्स काफी इनकरेजिंग है। रिसेंटली इसमें एक अच्छी खासी जंप आई थी 450 440 के लेवल से। हाउएवर लास्ट 2 दिन में इसमें थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। बट गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि स्टॉक को 570 560 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो व्यूअर होल्ड कर सकते हैं। 568 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रॉब्ली आज थोड़ी वोलेटिलिटी हो इस स्टॉक में। 610 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये नियर टर्म की बात करते हैं तो 610 के ऊपर अगर स्टॉक मेंटेन करता है पोजीशन, तो इसमें जो प्रीवियस अपमूव आई थी वो कंटिन्यू होगी 640 650 तक। तो ये लेवल पे मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस 568 का होगा। चलिए, तो 568 के एक स्टॉप लॉस का टीटागढ़ वैगन में जरूर ख्याल रखें और होल्ड करें फिलहाल टीटागढ़ वैगन को। प्रवीण जी का सवाल शामिल करती हूँ, बेलगाम से जुड़े हैं हमारे साथ। प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। कौन सा शेयर आपके पास है? मैडम मेरा डिश टीवी है 150 शेयर और 80 20 पैसा और 150 शेयर है और 80 रुपीज के आसपास खरीदा है आपने? हाँ, ऑल राइट। चलिए, आपका सवाल रखते हैं अविनाश जी के सामने। अविनाश, डिश टीवी 150 शेयर है, 80 रुपए के 20 पैसे के आसपास इनकी खरीद रही है। प्रवीण जी को क्या कहना चाहेंगे आप डिश टीवी के बारे में? आई थिंक प्रियंका, ये शेयर इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि क्लियरली हमने देखा है कि डीटीएच एक ऐसा सेगमेंट है जो एक सनराइज सेक्टर है। अभी भी काफी हाउस होल्ड है जो अभी भी केबल टीवी यूज करते हैं और डिश टीवी डीटीएच का जो मात्रा है वो स्लोली पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। मेरे राय में ऑलरेडी हमने देखा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले 4th क्वार्टर में होपफुली मैनेजमेंट ब्रेक इवन की बात कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आएगी। तो आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन। मोर इम्पोर्टेंटली आने वाले बजट में हो सकता है कि सेट टॉप बॉक्सेस या जो इनपुट्स डीटीएच के लिए जाते हैं वहां पे थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी कम हो जाए या इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉसिबिलिटी है उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इनको होल्ड करना चाहिए। कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू रखिए क्योंकि इसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है, बट क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से इन द नेक्स्ट 1 ईयर कैन बी गुड। ऑलराइट, इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शेयरों पर सलाह तो जारी रहेगी, साथ ही हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट आपको देने वाले हैं अपने बजट पिक्स, यानी बजट के इस सीजन में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्हें लग रहा है कि उनमें काफी दमखम है। तो वापस आइए। साइड हो जाइए गाड़ी के थोड़ा साइड हो जाइए उधर भाग रहा हूँ आगे यार आगे बैठ देगा।
आज रेल बजट पे है सारा फोकस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब रुक कर रहे हैं रेल भवन का। अपने घर से निकल कर वो पहुंच रहे हैं रेल भवन की तरफ और उसके बाद जाएंगे संसद की तरफ, जहां रेल बजट फिर उनका पिटारा खुलेगा। रेलवे इसके लिए किस तरह के अनाउंसमेंट, किस तरह की प्लानिंग कर रही है ये सरकार, इन सबसे जुड़ी सारी अहम जानकारी आपको सीएनबीसी आवाज देता रहेगा अपने मेगा कवरेज में। फिलहाल रेल मंत्री सुरेश प्रभु रुक कर रहे हैं रेल भवन का। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और रेल मंत्री पहुंचने की कोशिश करेंगे रेल भवन। अब गाड़ी जो है वो घर से निकलती हुई और सीधे यहाँ से जो है वो रेल भवन। एक सेकंड प्रभु जी सर क्या कहेंगे, बजट कैसा होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा। जनता की उम्मीदों का जनता के लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। चलिए जनता के लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। सुरेश प्रभु रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहुंच रहे रेल भवन की तरफ और जब वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कैसा होगा रेल बजट, उन्होंने कहा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा और देश की निगाहें टिकी हुई हैं ही क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं रेल मंत्री। एक टेक्नोक्रेट होने के नाते इन पर काफी निगाहें टिकी कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर किस तरह के कदम उठेंगे, फेयर से लेकर फ्रेट में किस तरह के हम कदम उठते में नजर आएंगे। सब्सिडी को लेकर चिंता बरकरार है, वहीं स्वच्छता को लेकर सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी कि नहीं, खासतौर पर जब हम पूरे देश में एक स्वच्छ इंडिया कैंपेन लेकर आ रहे हैं तो रेलवे का ध्यान इस पर कैसे जाएगा। देखिए सीएनबीसी आवाज पर आज दिन भर हमारी मेगा कवरेज। रेलवे से जुड़े जानकार, एक्सपर्ट, पूर्व रेलवे से जुड़े अधिकारी हमारे साथ होंगे बताने के लिए कि ये बजट आके डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है या नहीं। पर फिलहाल हम शो में अब आगे बढ़ते हैं। मेरे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, समित चौहान और अविनाश गोराक्षकर। आप दोनों से एक एक करके पूछना चाहूंगी। समित, पहले आपसे, बजट के सीजन में कौन से वो दो स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी निगाह है और जिसके बारे में आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहला स्टॉक होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉप लॉस 465, टारगेट 510। कल ही हमने इसमें एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखा है। ये प्राइस डेवलपमेंट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसके एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा वॉल्यूम्स कल हुए हैं, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यूनियन बजट के पहले थोड़ा इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक चार्ट जाने का पोटेंशियल रखता है, हेंस 510 के स्टॉप लॉस के सलाह होगी। दूसरा स्टॉक होगा मेटल स्पेस से। हमें लास्ट 1 से 2 महीने से हम ये व्यू रख के चल रहे हैं कि जो भी प्राइस वाइज करेक्शन होना था वो मेटल स्पेस में ऑलमोस्ट हो, अभी काफी लिमिटेड हो सकती है। प्रॉब्ली लास्ट लेग ऑफ द करेक्टिव फेज हो सकता है, तो कोई भी मीनिंगफुल डिप मिलती है यहाँ से भी तो यहाँ पे टाटा स्टील एक्यूमुलेट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप 4 से 6 महीने का इसको 4 से 6 वीक्स का अगर इसको टाइम होराइजन दे तो स्टॉक में पोटेंशियल ये 394 एंड के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो समित के पिक्स हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस और टाटा स्टील, दोनों में ही वो एक स्टॉप लॉस भी सलाह दे रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 465 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 510 तक का दे रहे हैं। और टाटा स्टील बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस 330 रुपए का जरूर रखें, टारगेट 390 के हैं और टाइम फ्रेम 4 से 6 हफ्ते का है। अविनाश जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी, आपके कौन से हैं बजट के पसंदीदा, बजट से जुड़े पसंदीदा स्टॉक्स? प्रियंका, पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा उसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ये काफी हद तक गवर्नमेंट के जो क्लीन इंडिया कैंपेन है उसका बेनिफिशियरी हो सकता है। करीबन 90% शेयर सिंटेक्स प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट्स में मार्केट शेयर एंजॉय करता है और हमें लग रहा है कि इस आने वाले बजट में एक सेस भी आएगा और गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्पेंडिंग करेगी उसका बेनिफिशियरी सिंटेक्स को मिलेगा। अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो सिंटेक्स ने Q3 में करीबन 30% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया है, करीबन 60% से प्रॉफिट बढ़ा है, तो अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी मोमेंटम है। उनके जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे मोनोलिथ है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो आई थिंक करंटली जो करंट प्राइस है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। अगर कोई 6 मंथ्स का व्यू ले तो मैं समझता हूं करीबन 150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ऑलराइट, और अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा का, जहां सेशन की शुरुआत हो रही है। लोकसभा में शुरू हो रहा है आज का दिन और
इस पर हम नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि आज यहां पेश होगा रेल बजट। किस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं इस पर रहेगी हमारी नजर, पूरे देश की नजर। सीएनबीसी आवाज आप तक लेकर आएगा मेगा कवरेज, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितने खरे उतरते हैं सुरेश प्रभु एक्सपर्ट्स की निगाह पर। क्या वो ऐसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो रेलवे की तकदीर बदल देगा? इस पर रहने वाली है हमारी आज दिन भर नजर रेल बजट पर। सीएनबीसी आवाज पर देखिए मेगा कवरेज। और इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, शामिल करेंगे आपके सवाल। तो रेल बजट का इंतजार हम कर रहे हैं। रेल मंत्री अपने घर से रेल भवन की तरफ निकल चुके हैं, फिर पहुंचेंगे संसद। तो हमें इंतजार रहेगा किस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हैं आज। लेकिन फिलहाल वक्त है नो योर फंड मैनेजर जानने का। तो निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड पैसा कमाने का सबसे बेहतर जरिया, इसमें शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने का फैसला फंड मैनेजर की टीम करती है। किस आधार पर शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाए, बेहतर रिटर्न के लिए क्या हो सही पैरामीटर, इन सब मुद्दों पर एक फंड मैनेजर क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिरला सन लाइफ एएमसी के को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाटिल। आज हम आपसे समझने वाले हैं फ्रंट लाइन इक्विटी फंड के बारे में। इसके इन्वेस्टमेंट मैंडेट को थोड़ा सा हमें जरूर समझाइए शुरुआत में। ये फ्रंट लाइन इक्विटी फंड एक लार्ज कैप बायस फंड है। इसका मतलब है कि कोई भी समय में एटलीस्ट 80% ऑफ द फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में होंगे। हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स को डिफाइन करते हैं जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो लार्ज कैप कहलाते हैं। और ये फंड का बेंचमार्क है BSE 200, जिसमें लगभग 85% नॉर्मली लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं। पर इसका एक विशेष खासियत ये फंड की ये है कि ये फंड में डिसिप्लिन काफ़ी अच्छी तरह से हम रखते हैं। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ कि जो सेक्टर्स है बेंचमार्क में BSE 200, उससे हम ज़्यादा डेविएशन नहीं लेते हैं फंड में। मैक्सिमम डेविएशन 3% और 25% ऑफ दी वेटेज जो है सेक्टर का बेंचमार्क में, उससे ज़्यादा वेटेज डिफरेंस डेविएशन नहीं लेते हैं। और ज़्यादा फोकस रहता है फंड में स्टॉक सिलेक्शन में, जिसके आधार पर फंड में परफॉर्मेंस आ जाए। और डिसिप्लिन की वजह से इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करता है। लास्ट 10 साल में एवरी ईयर कैलेंडर ईयर ये फंड ने बेंचमार्क को बीट किया होगा। और आप इस अच्छे परफॉर्मेंस का श्रेय किसको देते हैं? आप क्या वजह देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है? लेकिन आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपने दफ्तर रेल भवन पहुंच चुके हैं। सभी की निगाहें इन पर हैं। आज रेल बजट पेश करने वाला है और रेल मंत्री क्या कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं FTI को लेकर, PPP को लेकर, रेलवे में मॉडर्नाइजेशन के किस तरह के कदम उठ सकते हैं, इस पर रहेंगी निगाहें। रेल मंत्री अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे थे, ये लाइव विजुअल्स हमने इससे थोड़ी देर पहले दिखाया था। वो अपने घर से निकले थे और पेपर्स लेकर निकले थे और इन पेपर्स पर रहेगी निगाह। उम्मीदें टिकी हुई हैं कि इन पेपर्स में से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन मेरे साथ है महेश पाटिल जी, जो कि बिरला सन लाइफ एएमसी के को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। हम इनसे इनके फंड के बारे में बात करते हैं, फ्रंट लाइन इक्विटी फंड। आपने कहा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन्होंने जो परफॉर्म किया। इस अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? क्या स्टॉक सिलेक्शन ऐसा रहा है इसलिए इस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस अगर देखा होगा तो कंसिस्टेंटली है एवरी ईयर। तो इसकी दो कारण है। एक तो मैंने जैसे बताया कि डिसिप्लिन जो फंड में है इन टर्म्स ऑफ जो रिस्क लेते हैं फंड में। रिस्क दो तरह की होती है, एक तो सेक्टर से कितना आप डेविएट करते हैं और दूसरी रिस्क होती है कि स्टॉक लेवल पे आप कितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में दाव लगाते हैं। तो सेक्टर लेवल पे भी डिसिप्लिन कि ज़्यादा डेविएशन नहीं ले और ज़्यादातर फोकस रहता है कि एक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल अगर IT सेक्टर है, उसमें से कौन सी अच्छी कंपनी है जो नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अच्छे रिटर्न दे सकती है बेस्ड ऑन जो उसकी वैल्यूएशन है और उसकी जो ग्रोथ आउटलुक है।
सो वी हैव हम लोग के यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट टीम है, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनालिस्ट टीम है जो हर एक सेक्टर को ट्रैक करती है और कॉन्स्टेंटली हम देखते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक में ज्यादा वैल्यू है, आज यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है. सो स्टॉक सिलेक्शन अच्छे विद इन द सेक्टर इज द मेन कंट्रीब्यूशन. और कभी कभी हम थोड़ा टॉप डाउन कॉल भी लेते हैं कि बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट साइकिल कहाँ पे है, तो कौन से सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं नेक्स्ट एक साल के हिसाब से. तो सेक्टर में थोड़ा ओवरवेट अंडरवेट का बैलेंस, राइट बैलेंस के हिसाब से वी ट्राई टू ऑल्सो गेट सम आउट परफॉर्मेंस. सो इसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि एवरी टाइम बेंचमार्क जो है उससे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस करते रहे कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली. तो उसके हिसाब से क्या कंसिस्टेंटली. तो मिस्टर पाटिल, आपने सेक्टर्स की बात की, अभी कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? सो अभी अगर देखा जाए तो लास्ट एक साल से ये फंड में हम लोग का रुझाव जो है मेनली डोमेस्टिक सेक्टर जो है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें ज्यादा है. तो उसमें अगर बैंकिंग देखोगे तो बैंकिंग में ज्यादा ओवरवेट है. विद इन बैंक्स ऑल्सो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें ज्यादा ओवरवेट है. और ऑल्सो दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, NBFC, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऐसी कंपनी जहां पे स्टडी ग्रोथ है और NPAs की ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है, वहां पे ओवरवेट है. उसके अलावा ऑटो सेक्टर में ओवरवेट है, मेनली 4 व्हीलर्स में, और ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रांग है और जिनका एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छी तरह से है. एंड कैपिटल गुड सेक्टर मेनली कि अभी यहां से इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर पिकअप होगा तो कैपिटल गुड सेक्टर में अच्छी ग्रोथ अगले 2-3 साल में आ सकती है. तो ये 3 सेक्टर्स है जहां पे फंड ओवरवेट है बेंचमार्क के मुकाबले में. और क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो आपके नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, जो आपको इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं? सो नेगेटिव लिस्ट में सेक्टर्स 3 सेक्टर्स है. एक तो मेटल सेक्टर, बिकॉज मेटल्स में हम लोग का व्यू ये है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन, सो कमोडिटी जो प्राइसेस है वो थोड़ी वीक रहेंगी और उसके चलते हुए मेटल्स में अंडरवेट है. और एनर्जी सेक्टर में भी, एनर्जी माने ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा अंडरवेट है, बिकॉज सम ऑफ दी PSU कंपनी, स्पेशली दी अपस्ट्रीम कंपनी जो है वहां पे बिकॉज ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन, वहां पे अर्निंग्स में थोड़ा स्लो ग्रोथ हो सकती है वहां पे. एंड कंज्यूमर गुड्स जो है FMCG सेक्टर जो बोलते हैं, वहां पे भी थोड़ा अंडरवेट है, मेनली बिकॉज कि वहां पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है और हम लोग ने लास्ट 1-2 क्वार्टर में देखे होंगे कि वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ भी स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ रूरल डिमांड थोड़ी वीक है. सो उसको चलते हुए वहां पे भी स्लाइट अंडरवेट है अभी. जी, तो आप मार्केट पर किस तरह का व्यू रखते हैं? मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कैसा दिख रहा है मार्केट? सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर मार्केट में देखा जाए तो यहां से अगर हम लोग 1-2 साल का व्यू लेते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है कंपनीज की वो अभी तक इतनी खास नहीं आ रही है. बट हम लोग की अपेक्षा है कि नेक्स्ट ईयर से अर्निंग्स ग्रोथ जो है एटलीस्ट निफ्टी और सेंसेक्स कंपनीज की अराउंड 17-18% हो जानी चाहिए. सो वो उसके मुकाबले, और एज वी नो कि इंटरेस्ट रेट भी अभी 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, बट अगले 1 साल में अनदर 50 to 75 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकती है. तो उसका बेनिफिट भी कंपनीज को मिलेगा जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो सकती है. सो उसके मुकाबले आई थिंक वाइल शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ ये लेवल पे शायद कंसोलिडेट करेगा, बट मीडियम लॉन्ग टर्म आई थिंक जितने अर्निंग्स ग्रोथ है 18% उतना रिटर्न तो मार्केट दे सकती है. और जो ग्रोथ आएगी नेक्स्ट ईयर वो मेनली सेक्टर्स जो लीड करेंगे वो है बैंकिंग, जैसे मैंने बताया, ऑटो सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर है, सीमेंट, यहाँ पे स्ट्रांग ग्रोथ आ सकती है. ऑलराइट, इसी के साथ बहुत धन्यवाद मिस्टर पाटिल हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. बिरला सन लाइफ AMC के को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल हमारे साथ थे फ्रंटलाइन इक्विटी फंड पर अपने व्यूज शेयर करते हुए. वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह. हमारे मार्केट एक्सपर्ट समीर चौहान हमारे साथ बने हुए हैं स्टॉक्स फटाफट लेकर. हम हाजिर रहने वाले हैं इस ब्रेक के बाद.
रेल बजट पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु किस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं, किस तरह के प्लान लेकर आते हैं, रेलवे की शक्ल सूरत सुधारने के लिए इस पर रहेगी नजर। मेगा कवरेज आप देखते रहिए CNBC आवाज पर। रेलवे से जुड़े तमाम एक्सपर्ट अपनी राय पेश करेंगे, बताएंगे किस तरह का बजट पेश हुआ है। लेकिन फिलहाल वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे मार्केट एक्सपर्ट समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं। समित से हम पूछेंगे क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को अपने शेयर्स में। सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं चारू का जयपुर से। HPCL के इनके पास 200 शेयर हैं, 630 रुपए इनकी खरीद रही है समित। देखिए रिसेंटली OMCs में इतना हमने मूवमेंट नहीं देखा है, बट अगर HPCL की बात करें तो ये रेंज में ट्रेड हो रहा है। 640 ऑन दी हायर साइड और लो साइड पे 580 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट 2 से 4 दिन में हमने देखा है कि स्टॉक में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। 578 का स्टिक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रॉबल इनका 630 635 का कॉस्ट वापस आ सकता है। आयुष कपूर KSB पंप्स पर सलाह चाहते हैं। 750 शेयर है, 612 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए KSB पंप्स में लास्ट कुछ महीनों में काफी अच्छी खासी रैली आ गई है। अभी लास्ट 3 से 4 वीक्स का अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है प्राइजेस में। तो मेरी ये सलाह होगी कि हर एक बाउंस पे, हर एक रैली पे इसमें प्रॉफिट बुक करें, और अगर लोअर लेवल्स पे उनको वापस अगर एंटर करने का चांस मिलता है तो वहां पे सोचिए, बट फिलहाल के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। ललित खन्ना दिल्ली से LNT के बारे में समझना चाहते हैं। 900 शेयर हैं, 1550 रुपए में इन्होंने खरीदा है। देखिए इनकी कॉस्ट प्राइस काफी अच्छी है। अगर नियर टर्म की अगर ये सोच रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। 1720 1740 का उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाता है, इसमें जो एक रेंज बन चुकी है 1740 से लेके करार हो सकती है। तो अगर नियर टर्म का व्यू है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। श्रीनगर के अयूब खान के पास HDFC के 250 शेयर हैं, 1450 रुपए की खरीद रही है समित। देखिए HDFC लिमिटेड एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इसमें हर एक लोअर लेवल्स पे इसमें बाइंग दिखाई देती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। फिलहाल तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 1450 का मेरे ख्याल से इनको एक बार उनकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, बट स्टॉक में स्ट्रेंथ है और होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। अंजुम दासगुप्ता रेणुका शुगर होल्ड करते हैं। 1000 शेयर है, 17 रुपए 10 पैसे इनकी खरीद रही है। देखिए अगर रेणुका शुगर की बात करें तो लास्ट 1 साल में इसमें कुछ बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। फिलहाल तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास चल रहा है, जो कि 16 साढ़े 15 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास चल रहा है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, बट आने वाले कुछ दिनों में मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मेजर मूवमेंट आएगा। इसमें वॉल्यूम पिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पुणे के शाहिदुल मोहम्मद फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के बारे में समझना चाहते हैं। 1000 शेयर हैं, 31 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। FSL की अगर बात करें तो नियर टर्म इसमें एक बाउंस आया था लोअर लेवल से 27-28 के, लेकिन 33-34 के आसपास वो रैली फिजल आउट हुई थी और स्टॉक में वापस एक करेक्टिव मूव दिखाई दिया है। बट 34-35 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक ये ब्रेक कर पाता है तो इसमें अच्छी खासी अप मूव कंटिन्यू हो सकती है। 38-39 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। होल्ड की सलाह होगी। 27 का इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। आखिरी सवाल जिग्नेश जी का। JK टायर के 900 शेयर इनके पास हैं, 140 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए JK टायर में जो 2014 के अर्ली पार्ट में जो रैली आई थी, उसके बाद रिसेंटली 1-2 महीने में इसमें कंसोलिडेशन दिखाई दिया है। 140 से लेके 100 का इसका एक कंसोलिडेशन हमने देखा है। 110 का इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर स्टॉक 110 के नीचे सस्टेन रह पाता है तो इसमें और वीकनेस आ सकता है। तो मेरी सलाह यही होगी, अगर स्टॉक 110 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे रहता है तो इसमें एक बार लॉस बुक करना चाहिए। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारे पास स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था। समित आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? काफी सारे स्टॉक्स पर आपसे बात हुई है। देखिए डिस्कस स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस किए, हो सकता है, बट मेरी यहाँ पे कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है इसमें।
ऑलराइट, धन्यवाद समित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नजर बाजारों पे डाल देते हैं। सेंसेक्स में हम करीब 52 अंकों की कमजोरी देख रहे हैं। निफ्टी भी 10 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रेशर नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 531 शेयर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 774 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। जाहिर तौर पर बाजार में दबाव दिख रहा है। बाजार को नजर रहेगी रेल बजट पर भी। तो यहीं पर हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे रेल बजट पर हमारी खास कवरेज जारी रहने वाली है। बोलो ना यार सर, एक साथ हम दिखा दीजिए। भवन से निकल